सो कोई डाउट है बाबू? पिछले क्लास से कोई डाउट है किसी को? एनीवन है डाउट अप टू नाउ? किसी को डाउट नहीं है? सो दिस इज द लेक्चर नंबर 5, डायरेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन एंड इट्स। बाबू ये डाल तो इसमें ये आ रहा है पूरा बोर्ड, देखो तो डायरेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन इसमें डाल दो। तो हमने ये पढ़ लिया था बाबू, E external equal to epsilon r E internal. This is the electric field at a point in the dielectric, and this is the electric field at a point in the vacuum. ठीक है, in the vacuum. ठीक है, मैं ये बता रहा था, देखो सिलेबस में ये सब चीज़ें नहीं है बाबू, लेकिन थोड़ा सा जान लो यार। पेपर का क्या 5 नंबर कम आए, नॉलेज हो जाए तो कोई गुनाह है? बताओ, 5 नंबर कम आए, थोड़ा सा नॉलेज है तो कोई गुनाह नहीं है ना? बोलो तो थोड़ा सा जान लो यार, चीज़ों को सीखो। सिलेबस का क्या है कि हो जाएगा, सिलेबस का क्या है हो जाएगा। तो देखो देयर आर 2 चार्जेस, मैं करवा दूंगा, मेरे को विश्वास रखो। देयर आर 2 चार्जेस Q1, जब तक ढंग से नहीं पढ़ाता ना तो मेरे को मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता, तो तुम लोग का तो दूर है, अंदर से लगता है कि यार पाप कर रहा हूँ मैं। Q1 और Q2, देयर आर 2 चार्जेस kept at a finite separation R and they are in the vacuum, they are in the vacuum. So force between them is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. And if these 2 charges are in the medium, these 2 charges are in the medium, so this is the medium having dielectric constant epsilon r, and there is a charge Q1 over here and there is a charge Q2 over here, and the separation is R. So force is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, and there is a factor of epsilon r over here ना, कहाँ से कैसे है? You can feel this. हो गया क्या? मान लो these 2 charges are in the vacuum, there is any medium, there is any medium, then polarization goes to 0, because polarization होता क्या है? epsilon naught chi E internal. So for vacuum chi E is equal to 0, so P is equal to 0. Since P is equal to 0, P is equal to 0, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अंदर? वही होगा जो एक्सटर्नल होगा, यानी इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मतलब पोलराइजेशन 0, तो E इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है? सेम है, क्लियर? बट हियर देयर विल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. लेट अस assume your Q1 is greater than Q2, means directional electric field will be from high potential to low potential, मतलब in this direction ना. directional electric field is this ना, directional electric field is from high potential to low potential. अब इस electric field होगा, अब there are large number of this is the medium, so this is made up by atoms molecules ना, तो उसका डाइपोल्स क्या होंगे बाबू? अलाइन होना शुरू करेंगे. किधर अलाइन शुरू होंगे? अब माइनस चार्ज किधर जाएगा? इधर, और प्लस चार्ज इधर, यानी कि इधर माइनस चार्ज आएगा, इधर प्लस चार्ज आएगा. पोलराइजेशन होना शुरू होगा ना यार. अब क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू पोलराइजेशन नेट इलेक्ट्रिक किधर होगा बाबू? इधर ना. या ये सोचो कि इन दोनों के बीच में फोर्स, जब मीडियम में कुछ नहीं था, वैक्यूम था, तो इन दोनों का फोर्स ये लग रहा था. अब क्या इसको मीडियम में रख दिया तो इस चार्ज पे ये वाला फोर्स अप्लाई करेगा, क्लियर? और सेम टाइम पे ये जो ये Q2 की बात करो अगर, तो ऑन Q2 Q1 is applying force in this direction. Yeah, they are positive, so they are positive. Q1 and Q2 are positive, they will repel. So Q1 will apply force on Q2 in this direction. Clear? Q1 will apply force on Q2 in this direction. They are in the back. So only the force acting on the Q2 is due to only Q1 na. There is no any other charges na. The force acting on charge Q2 is only due to Q1. This charge is only responsible for the force acting on the Q2. But when the two charges are in the medium, again force is acting on Q2 due to Q1.
force is acting on Q2 due to Q1, but the electric field in the medium and direction of electric field is from low high potential to low potential, मतलब direction of electric field क्या है, इधर है, so due to this electric field dipole of these the electric field align ना in this direction, तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। so अब क्या होगा, यहाँ दो चार्जेस हैं, एक तो ये चार्ज है जो तुमने रखा है फ्री चार्ज, देयर द फ्री चार्ज Q1 and Q2 are free charge, so this free charge Q1 is the free charge and this charge is applying force on Q2 in this direction. At the same time this electron is applying force on Q2 na, and direction will be this na, and also at the same time this positive charge which is the bound charge is also applying force on Q2 और डायरेक्शन किधर होगा, मान लो इधर रिपेल करेगा ये, तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट एक होगा ना, इसके दो फोर्स होंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर लगेगा और इधर लगेगा, मतलब देयर इज रिजल्टेंट फोर्स इन दिस डायरेक्शन ड्यू टू बाउंड चार्ज एंड देयर इज फोर्स ड्यू टू फ्री चार्ज इन दिस डायरेक्शन, मींस ऑन Q2 देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग, फ्री चार्ज इधर और बाउंड चार्ज इधर ना, एंड हियर द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस Q2 इज ओनली फ्री चार्ज ना, force due to free charge Q1, here force acting on Q2 is due to two charges, free charge and the bound charge, तो यहाँ पर फोर्स कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे फोर्स कुछ होगा, फोर्स ओवर हियर इज लेस देन ओवर हियर ना, गॉट माय पॉइंट, और कितने फैक्टर्स होगा बाबू, 30 फैक्टर्स हो गया एप्सिलॉन r से, इसीलिए दो चार्ज वैक्यूम में रखोगे उसमें कुछ लगेगा फोर्स, और मीडियम में लग जाएगा फोर्स विल डिक्रीज ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम में पोलराइजेशन आएगा, ड्यू टू दैट देयर विल बी बाउंड चार्ज एंड दे विल आल्सो अप्लाई फोर्स ऑन द charge and force due to bound charge will always opposed to the force due to free charge. Got my point? क्लियर हुआ, इमेज मारा कैसे फोर्स डिक्रीज होता है भाई, इधर से 17 एप्सिलॉन r ओवर है, बात समझ आई कि नहीं ये बताओ, थंब अप करो सब, इधर वीडियो वाले ये तुम लोग क्लियर है ना, ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वालों सबको क्लियर है, गुड, चलो लिखो लिखो, कर लिया बाबू, कर लिया, करी रेज, बोलो, नाउ विल रीडिफाइन गॉस लॉ, गॉस लॉ we'll define Gauss law for medium as well as for vacuum, Gauss law for medium and Gauss law for vacuum. So this is for vacuum, Gauss law is what, integration E dot NDS is equal to Q free upon epsilon naught, Q free, and for vacuum, for medium, for dielectric, for medium and dielectric. So Gauss law is integration E dot NDS Q free upon epsilon naught epsilon r. This is the Gauss law for dielectric or medium. Clear? देखो सबसे पहले इक्वेशन को क्या मतलब है, E इंटरनल इक्वल टू E एक्सटर्नल epsilon r, मतलब ये बाबू इस सेम पॉइंट पे अगर पॉइंट है, जैसे मान लो कि दिस इज द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट of the medium in which your point lie, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे वो इलेक्ट्रिक वो पॉइंट जिस मीडियम में उसका नहीं, आसपास कोई मीडियम उसको उससे फर्क नहीं पड़ता, क्लियर, जिस मीडियम में पॉइंट P है या पॉइंट है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते उसी का लेना है, आसपास का मतलब नहीं, आगे बस में ये जहाँ पॉइंट है उसी का एप्सिलॉन r लेना है, इधर उधर का नहीं लेना, ये सब को गलत करवा देते हो, क्लियर, सो ये होगा, दिस इज द गॉस लॉ फॉर डायरेक्ट्रिक एंड दिस इज द गॉस लॉ फॉर वैक्यूम, इसको ऐसे ही मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, अगर इसको देखो
ये क्या बाबू इंटीग्रेशन, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इंटरनल भी बोल सकते हो। वैक्यूम में क्या होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होगा, बराबर होगा। ये भी क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब ये इंटरनल वाला है। वैक्यूम के केस में क्या होगा बाबू, दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, ई एक्सटर्नल इक्वल टू ई इंटरनल। क्लियर? सो हियर दिस इज द नेट एंड आल्सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ये इंटरनल इसको बोल सकते हैं। देखो ये है ई डॉट एनडीएस इक्वल टू क्यू फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नेट चार्ज inside Gaussian surface. This is the net charge inside the Gaussian surface and this is the what? Net charge मतलब फ्री चार्ज माइनस बाउंड चार्ज। कैसे देखो, मान लो क्या चार्ज हुआ Q और यहाँ पॉइंट P है and the work is to find the electric field at point P. क्या होगा, we'll draw a Gaussian surface ना, now we'll apply this formula E dot n ds। ये दिख रहा वीडियो में देखो तो Q free upon epsilon naught, we'll apply this formula ना, हाँ E dot n ds equal to Q free upon epsilon। ये formula apply करोगे ना, when point P is in the vacuum, one point P is the vacuum। Now this point is in the medium, this point is the medium। Example देखो, मान लो कि ये इधर दिख रहा है, इधर this point P is in the medium, मतलब मान लो कि मीडियम है, this is the sphere और ये sphere और ये डायलेक्ट्रिक से मिलकर बना है, कोई डायलेक्ट्रिक हो सकता है। and there is a point at the center। क्लियर? सेंटर पे चार्ज क्यों रखते हैं, क्लियर? सेंटर पे and this is the डायलेक्ट्रिक, this is the डायलेक्ट्रिक से बना है ये sphere। क्लियर? And the question is find electric field at a point P. The charge at the center and this is the dielectric having a spherical shape and epsilon r मान लो कुछ है इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। So question is find electric field at point P। तो करोगे क्या, यहाँ से Gaussian surface ड्रॉ करोगे ना, Gaussian surface। अब क्या होगा, due to this point charge there will be electric field, there will be a electric field। इलेक्ट्रिक क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा ना बाबू, रेडियली। अब पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगा ना यार। So due to this electric field, the dipole, the molecule of the dipole will polarize ना, इसमें पोलराइजेशन हो जाएगा ना, and dipole will try to align the direction of electric field। तो होगा क्या, इधर माइनस चार्ज होगा, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस होगा ना। क्लियर? तो होगा ना, तो देखोगे क्या कि गॉसियन सरफेस के अंदर एक तो फ्री चार्ज है तुम्हारा और दूसरा क्या मिलेगा, एक बाउंड चार्ज भी मिलेगा। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज यानी कि अगर पॉजिटिव क्यू तुम्हारा पॉजिटिव है तो यानी कि फ्री चार्ज तुम्हारा क्या बाबू पॉजिटिव है, तो इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर जो बाउंड चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब कोई मेथड में देखो कि अगर प्लस करें तो ये माइनस आ रहा है, अरे बस समझ, तो नेट क्या होगा, चार्ज घट जाएगा, नेट चार्ज अंदर में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और क्यू नेट कितना होगा, क्यू नेट हो जाएगा वो क्यू फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये नेट चार्ज अंदर में आ जाता है। क्लियर? अब गॉस का प्राइस होगा क्या होगा, E डॉट n ds इक्वल क्यू नॉट अपॉन क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन, और क्यू नेट देता है क्यू फ्री अपॉन एप्सिलॉन r। ये बात समझ। अब इसका भी प्रूफ है कि क्यू फ्री अपॉन एप्सिलॉन r कैसे आया, कहां से आया, इसका भी प्रूफ है, करवा दूं? इसका भी प्रूफ है, आई कैन प्रूव दिस क्यू फ्री अपॉन एप्सिलॉन क्यू नेट अंदर में कैसे हुआ, ये इसका भी प्रूफ है, आई कैन प्रूव दिस, इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन प्रूव दिस। कर दूं प्रूफ? तो पहले लिखो इसको, ढंग से पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाता हूं। जब उधर पढ़ाऊंगा सेकेंड बुक में न्यूक्लियर मॉडर्न फिजिक्स, तो इजी चैप्टर से 2 दिन में खत्म हो जाता है, 2 दिन में। क्लियर? तो जब लगे कि सिलेबस तरह पीछे चला तो मुझे रिमाइंड करा देना, तो उधर से 2-4 चैप्टर इकट्ठे कंप्लीट करा दूंगा, तो मेरा सिलेबस सही चला। ठीक है? पिछली बार हर एक हफ्ते में चैप्टर करा दिया, हर संडे करवा देता था। तो ये कर लेंगे आराम से, आज कर लेंगे। पहले जो भी हो ढंग से सीखो, जो भी सीखो कम सीखो, ढंग से सीखो। सो हमको प्रूफ करना है क्यू नेट इक्वल टू क्यू फ्री अपॉन एप्सिलॉन सॉरी, ये प्रूफ करना है। देखो बाबू कर लो,
That's very good. So if there is a uncharged sphere, and there is a charge over here Q. So this will apply electric field. This will apply electric field, na? This will apply electric field, and this uncharged sphere is in the electric field produced by this, and let us say this is the free charge. So what? There will be a charge induced in the sphere, na? And that is called the charging by induction. Charging by इंडक्शन. चार्जिंग में इंडक्शन है. पोलराइजेशन भी तो पोलराइज ही कर रहा है. होता क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, प्रोटॉन और एटम वहीं रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो पोलराइजेशन ही हो गया, डाइपोल बना देते हैं हम इसमें. तो अगर चार्जिंग में इंडक्शन, तो जो चार्ज इस पे इंड्यूस होगा Q इंड्यूस, वो होता है Q1 माइनस 1/K या एप्सिलॉन r. K वहां डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, एप्सिलॉन r यूज करना. तो दिक्कत है यही होता है ना, चार्ज इंड्यूस यही होता है ना. अगर Q पॉजिटिव होगा तो इंड्यूस चार्ज क्या होगा? इफ Q इज पॉजिटिव, Q इंड्यूस विल बी नेगेटिव, एंड Q इक्वल टू नेगेटिव, तो Q इंड्यूस विल बी पॉजिटिव. माइनस साइन होता है, तो यहाँ माइनस साइन पुट कर सकते हैं. ये पढ़ाई खत्म है, ये आता है सबको, क्लियर? सो नाउ देयर इज ए स्फीयर. And charge is at the center. Charge at the center. Clear? Clear. So this will apply electric field. So due to this electric field, मान लो there is a point over here. There is a point over here. तो ये क्या गॉसियन सर्किट ड्रॉ कर लो. So due to this charge, there will be charge induced in the sphere ना, और वो induced कितना होगा चार्ज? वो होगा Q. इंड्यूस कितना होगा? वो होगा Q, मान लो ये फ्री है, तो कितना होगा? Q फ्री 1 - 1/एप्सिलॉन r. यही होगा ना चार्ज इंड्यूस. और ये अगर पॉजिटिव है तो इंड्यूस चार्ज कितना होगा? नेगेटिव होगा. इधर नेगेटिव होगा. क्लियर? नेगेटिव होगा. क्लियर? तो बाबू अब नेट चार्ज कितना होगा? नेट यानी अंदर में दो चार्ज, एक फ्री चार्ज और एक इंड्यूस चार्ज. तो नेट चार्ज कितना होगा बाबू? नेट चार्ज Q नेट विल बी इक्वल टू Q फ्री माइनस Q into charges are additive in nature ना. चार्ज are additive in nature. टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द राइट सम ऑफ ऑल द चार्ज ना. माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इसका नेचर क्या है? अपोजिट है. माइनस साइन लगाया, यहाँ माइनस साइन लगा होगा तो क्या करोगे? यहाँ प्लस करोगे. आर ये बात समझ, दिस इज वेरी लॉजिकल. कोई दिक्कत? तो तुम्हारी हो जाएगा बाबू Q फ्री माइनस Q फ्री and 1 - 1/एप्सिलॉन r. तो बचेगा कितना? Q फ्री माइनस Q फ्री प्लस Q फ्री अपॉन एप्सिलॉन r. गया बचा कितना? Q फ्री अपॉन एप्सिलॉन r. लो आई बात समझ. सो Q नेट इक्वल टू Q फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? थोड़ा बहुत और इसको देखता हूँ और भी सिंप्लीफाई करते हैं. चीज़ों का समझना जरूरी है. तो देखो होगा क्या. सो देखो ये है, यहाँ पर चार्ज Q है, ये फ्री चार्ज, यानी हमने दिया इसको बाउंड चार्ज. अगर मान लो ये पॉइंट है तो इस पे इसके अंदर एक बाउंड चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड. इस पॉइंट पे अगर EP की बात करोगे तो पॉइंट P है बाबू. तो EP कितना होगा? EP डॉट NDS इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और Q नेट क्या है बाबू? यह Q फ्री अपॉन एप्सिलॉन r. या ऐसे लिख सकते हो EP नेट EP डॉट NDS वही E है इक्वल टू Q फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन. क्लियर? दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये है बाबू, कैसे देखो ये तुम्हारा स्फीयर और यहाँ क्यू फ्री है, पॉइंट पी यहाँ है, गॉसियन सर्फेस करोगे तो अंदर में दो चार्ज है, एक तो क्यू फ्री है अंदर में, क्लियर, और एक क्या है बाबू क्यू इंड्यूस है ना, और क्यू इंड्यूस वाले का वैल्यू कितना है 1 - 1 अपॉन के क्यू फ्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन होगा। आर ये बात समझ, दोनों इलेक्ट्रिक, ये भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना इस पॉइंट पर, ये भी करेगा ना, क्लियर। तो इसकी वजह से क्या होगा, ई मान लो ई फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड टू फ्री चार्ज विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यही होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्री चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज वो कितना होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी क्यू इंड्यूस्ड अपॉन आर, यही होगा ना। अब डायरेक्शन क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्री चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन। इस पॉइंट पे फ्री चार्ज इधर होगा और इंड्यूस्ड चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ ई फ्री एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ ई इंड्यूस्ड। सो ई नेट कितना होगा बाबू, ई नेट इज इक्वल टू ई फ्री माइनस ई इंड्यूस्ड। अब कितना होगा, ये ई फ्री कितना है बाबू कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू फ्री अपॉन आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंड्यूस्ड अपॉन आर। आर ये बात समझ, तो बाहर ले लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाहर हो जाएगा, क्यू फ्री माइनस क्यू इंड्यूस्ड बचेगा, और फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाहर हो गए, क्यू फ्री माइनस क्यू इंड्यूस्ड। क्यू इंड्यूस्ड को क्या लिख सकते हैं अपन, ये 1 माइनस यहाँ क्यू फ्री एंड 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, क्लियर। यहाँ के लिखा है, एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो तुम डायरेक्टली कांस्टेंट, कोई दिक्कत। अब करोगे तो फिर वही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू फ्री अपॉन आर, यही आ जाएगा ई नेट। आई बात समझ, तो यहां से भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत, दे आर सेम, समझ आना जरूरी है चीजों का, खुद कहीं से भी करोगे आ जाओगे वहां, क्लियर। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ अगर क्लियर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, आई बात समझ बाबू।